Hello everyone, I welcome you all on this YouTube channel UPSClogy. This is me Rahul, and today in this video we are going to cover this topic called conflict in federalism, and we are going to link this conflict with different thinkers of your public administration and different theories of public administration per se. And do follow this series on the regular basis. Daily you will get one video of public administration. Either you will get linking video or you will get this kind of previous year question video. So two series are going on with respect to public administration. Daily you will get one video at 10 p.m. sharp 10 p.m. Similarly at 10 a.m. you will get GS video. Either the video will be based on the April 2021 current affair magazine, as of now it is going on, and either that video you will get, or you will get the video of this environment PT 365. Okay, so do follow the channel regularly and you can subscribe to this channel. Apart from that, you can also download the PubEdpedia magazine. As you can see over the screen, this is nothing but the PubEdpedia magazine by me itself. Okay, so here you can see Telegram channel, so you can join the Telegram. September 2020 edition is there in the channel itself. You will get that PDF in the files of the files section of that channel. Apart from that, for other things you can just follow the guidelines given in the description box. You have to basically subscribe for the subscription. You will get the magazine, the PDFs on your email ID itself. You have to fill the Google form. Okay, now let's get started without wasting a bit of time. So here, conflict in the federalism and how can you link. So first of all, Mary Parker Follet, she was talking about conflict. She was talking about constructive conflict. You must be knowing about this thing. Okay, so this is very generic thing. Everybody, literally everybody knows about this concept, and everybody knows that she was associated with conflict. Okay, so you can just remember conflict is something that was given by her only. Apart from that, solution, three ways to resolve. So she was talking about 3 ways to resolve the conflict, that is compromise, domination and integration. So those things are there. Then she also talked about the problems with respect to integration में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो इनकी बात करती हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, और कैसे इंटीग्रेशन लाया जाता है, क्या तरीके होते हैं. सो सर्कुलर बिहेवियर, ऑल द स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन हर theory. So just try to understand this. Apart from that, the second thinker that you can quote or that you can link is Likert. If you go deep into this topic of Likert, in one line you will get this thing. ठीक है, वो पेज पलटते हैं, वहाँ कहीं ऊपर साइड में कहीं लिखा हुआ है प्रसाद में. So people tends to you can say, if you will not read line by line, word by word, you tend to forget, you tend to ignore this topic. ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि लिकर्ट ने अभी कन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ बोला है. ठीक है, अगर पता भी होगा तो लोग इमेजिन करके बोल देंगे या लॉजिक लगा के कि या सिस्टम 4 कैन बी यूज्ड, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन होता है. सो दैट विल ब्रिंग द कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. बट अगर आप पूछोगे टाइप्स क्या हैं, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपके फ्रेंड्स हैं, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एज पर लिकर्ट. कंप्रोमाइज डोमिनेशन वो तो पता होंगे एमपी फॉले वाले. जस्ट ट्राई दिस थिंग आउट एंड जस्ट लेट देम नो दैट यू नो बेटर देन दोज गाइज. ओके, सो जस्ट try this out. This is a challenge for you. Try this out. Ask about this question, what are the types. Okay, Likert, he was talking about substantive and affective conflict. Substantive conflict is something that is based on the simple idea, means some fact is there, means the conflict is there on the basis of information, on the basis of substance of the things. Okay, on the other hand, affective means emotional component. So if you link this thing with your general studies paper 4, in GS4 there is a topic called attitude has 3 components which are called as CAB. Okay, CAB model of attitude is there: cognitive component, affective component and behavioral component. Okay, so this
substantive conflict is basically associated with that cognitive component of attitude, while affective conflict is something that is based on that kind of means that affective component of attitude itself. तो वहाँ पे cognitive component क्या होता था, जो knowledge, information और इन चीज़ों से related था उसको बोलते थे, ठीक है. उसकी वजह से जो हमारा attitude बनता है, जो हम न्यूज़ देख कर attitude बनाते हैं, जो हम न्यूज़पेपर्स पढ़ कर attitude बनाते हैं, that attitude is this. And apart from that दूसरा वाला जो emotions के basis पर चलता है. So now how these conflicts are different. In substantive conflict you are in the conflict with another party, but at the same time your conflicts are very, you can say, substantive in nature, means you are in conflict. but आपने सुना होगा, मोदी जी को सुना होगा, वो बोलते जब लोकसभा में बोलते वगैरह हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही मतलब ओरेटरी स्किल्स जो उनकी हैं यूज़ करते हैं प्रॉपरली. सो ही यूज टू से दिस थिंग दैट हमारे जो हैं मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते. सो all the time whenever you will get some speech with respect to किसी का फेयरवेल हो रहा है और समथिंग, सो पॉलिटिकल लीडर्स यूज टू डू दिस थिंग कि हमारे मतभेद तो थे, मनभेद कभी नहीं हुआ है ना, समथिंग लाइक दैट. मीन्स दे हैव द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन डिफरेंट इशूज, मीन्स इंफॉर्मेशन वाइज दे हैव डिफरेंसेस, आइडियोलॉजी वाइज दे हैव डिफरेंसेस, बट एट द सेम टाइम वो जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है गलत है, वो चीज़ें सब्सटेंटिव है. मीन्स दे आर इन कन्फ्लिक्ट, लेकिन उस मैटर पे कन्फ्लिक्ट में है. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के दिल से दुश्मन हो गए, नहीं, उस मैटर पे वो एक दूसरे का पोजीशन में है, लेकिन वो मैटर के अलावा वो लोग दोस्त हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं. दिस इज नोन एज सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट. अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट इज समथिंग वेयर यू हैव इमोशंस अटैच टू दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ओके, सो या कोई बॉर्डर इशूज़ होते हैं जब कंट्रीज़ के बीच में, देयर यू विल गेट अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट. एंड लिकर्ट ने ये बोला है दैट अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व. इनको रिजॉल्व करने में दिक्कतें होती हैं. क्यों भाई दिक्कतें क्यों होती हैं? दिक्कतें इसलिए होती हैं बिकॉज हेयर यू विल गेट द इमोशनल थिंग, ओके, इमोशनल एस्पेक्ट आ जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग. एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इशूज़ होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस इशूज़ आर मोस्ट ऑफनली और मोस्ट कॉमनली दे आर एसोसिएटेड विद दैट अफेक्टिव कंपोनेंट itself, and that's why Likert says that it is difficult to resolve these affective conflict. Okay, so whenever you are dealing with the public administration you have to understand कि affective conflict है या substantive conflict है. So for example farm laws, so conflict is going on, बट दैट कन्फ्लिक्ट, वो जो कन्फ्लिक्ट है शुरुआत में तो वो सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट था कि ठीक है इन्फॉर्मेशन इज देयर एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब लोग उसको बहुत ज़्यादा उस इशू को अलग तरीके से ट्रीट करने लगेंगे, दैट विल बिकम अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट. ठीक है, फिर वो एक अफेक्टिव कंपोनेंट पे आ जाएगा क्योंकि जब इमोशंस लोगों के अटैच हो जाएंगे. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग. तो इस तरीके से आपको याद रखना है. इसके अलावा सॉल्यूशन, इन सो फार एज सॉल्यूशन इज कंसर्न, ही वाज टॉकिंग अबाउट इन दिस इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम. Interaction influence system is nothing but the system 4. In system 4 you will get the bottom up approach, you will get the high level of trust, you will get the high level of communication from bottom to top, you will get the higher level of decentralization of decision making, you will have the higher level of participation of the people in the solution making. Okay, so it is also known as participative model, या participative system of this participative system of organization. Okay, so it creates the kind of organic organization. Organic organization is something जहाँ पे लोगों के अंदर ईगो बिल्डिंग होगा, ना कि ईगो डिफ्लेटिंग. ठीक है, सो ईगो बिल्डिंग विल बी देयर, नाइदर यू विल गेट ईगो इन्फ्लेशन और ईगो नॉर ईगो इन डिफ्लेशन, यू विल गेट ईगो बिल्डिंग. लोगों के ईगो जो है बिल्ड किया जाएगा. ईगो मीन्स योर एटीट्यूड. ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर. सब्सटेंटिव, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी हो जाता है ईजिली क्योंकि हाई ट्रस्ट होगा तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे. देन वी हैव द डगलस मैकग्रेगर. डगलस मैकग्रेगर वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थियरी एक्स एंड थियरी वाई, एंड थियरी वाई जो है दैट थियरी वाई इज कॉल्ड एज द वर्किंग थ्रू डिफरेंसेस, while theory X is known as carrot and stick policy of conflict resolution. So you can say like theory X is something that Britishers were using at that point of time, means before the independence Britishers were using that carrot and stick policy, which is also known as the theory X. Okay, theory Y is something that is working through differences, means differences are there but you have to work out those differences, and this is something that is based on the idea of participation. This is something that is based on the idea of
high trust in the system or in the organization for that matter. Okay, I hope you are getting. सिंपल सा है. मैकग्रेगर, अब जो लोग हिंदी में वो सुन लें कि एमपी फॉलेट ने बात करी थी, उन्होंने कन्फ्लिक्ट को टाइप्स वगैरह बहुत सारे एनालिसिस आपने बुक में पढ़ा है. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. लिकर्ट ने सब्सटेंटिव और अफेक्टिव की बात की थी, जो मैंने बता दिया है अच्छे से कि सब्सटेंटिव जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड जो है वो कन्फ्लिक्ट होता है. अफेक्टिव जब इमोशनल लेवल पर हम किसी के दुश्मन बन जाते हैं. एक होता है कि किसी मुद्दे पर बहस है, तो सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट आर ऑलवेज गुड, वो अच्छे होते हैं. मतलब अच्छे इन द सेंस कि वो ईजी टू रिजॉल्व होते हैं, कि किसी बात पर है बात, है ना. मान लो लड़ाई है, जैसे फार्म लॉज है, तो दैट पर्टिकुलर बिल के ऊपर लड़ाई है. ऐसा नहीं कि फार्मर वर्सेस गवर्नमेंट, ऐसा कुछ एक ऐसा नहीं कि दुश्मन ही बन गए, वो बिल के ऊपर बस लड़ाई है. दैट इज़ सब्सटेंटिव. जबकि अगर इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ हो जाता है, जब कुछ ऐसा अटैक वटैक हो जाता है, तो फिर वहाँ इमोशंस लोगों के आते हैं, फिर वो कन्फ्लिक्ट अलग होता है. वो ये वाला नहीं होता कि बिल है, बिल पास हो जाएगा तो सही हो जाएगा. वो वाला कन्फ्लिक्ट पता नहीं कैसे रिजॉल्व होगा, वो कोई नहीं जानता. ठीक है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व. आई होप यू आर गेटिंग दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, McGregor theory X, theory Y. theory X में you will use carrot and stick, means you will use the kind of force, you will use the idea of direction and control. जबकि theory Y में you will use this idea of working through differences, जिसको हम बोलते हैं idea of self control, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा ऐसे नहीं की जाएंगी. So this is all about the conflict in federalism. इसको लिंक कर सकते हो जब आप बात कर रहे हो इन चीज़ों की. ऐसे ही हर जगह यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था कि बजटिंग एक्सरसाइज इज नथिंग बट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में जो उनके बीच में जो मतलब उनके डिफरेंट इंटरेस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनके जो इंटरेस्ट से जो बनता है उसी को हम बजट बोलते हैं. सो वाइल टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, तो आप कह सकते हो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दे यूज टू हैव देयर डिफरेंट इंटरेस्ट, और दैट इज समथिंग दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कन्फ्लिक्ट एज वेल, है ना. तो कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करोगे? इंटीग्रेट करोगे, है ना. सो इंटीग्रेट वगैरह करोगे. सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव टू डेवलप वाइल राइटिंग द आंसर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सिंपल अगर क्वेश्चन है कि बजटिंग इज द एक्सरसाइज वेयर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, और अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ पे आपको कन्फ्लिक्ट लाना पड़ेगा, आपको फिर कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा. दैट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट बॉडीज, ओके, लाइक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर विच इज अ coordinative, which is the agency for coordination. Okay, so this is there and I hope you are getting all the things. मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत easy था आज का टॉपिक, क्योंकि आपको नॉर्मल कन्फ्लिक्ट सुना हुआ है आपने. बस दिक्कत कहाँ आई होगी, मुझे ऐसा लगता है लिकर्ट का पॉइंट जो सब्सटेंटिव अफेक्ट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो नॉर्मल जो डायरेक्ट क्रैश कोर्सेज होते हैं, सो कॉल्ड क्रैश कोर्सेज, या बड़े बड़े जो मतलब यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह होते हैं, तो वो टॉपिक साइड में थोड़ा सा रहता है, तो इग्नोर मार दिया जाता है कि यार कुछ नहीं है, क्योंकि मेन लिकर्ट पढ़ोगे तो सिस्टम 1 2 3 4 हैं, और बाकी थोड़ी सी और चीज़ें हैं. तो वो कन्फ्लिक्ट वाला इतना ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब समझ रहे हो कि ज़्यादा उसको वो इग्नोर साइड टॉपिक बन जाता है. लेकिन UPSC जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछी है प्रीवियस ईयर में. ट्रेस करना पड़ता है पूरी क्रोनोलॉजी के कितने किस थिंकर ने एक टॉपिक पर क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉले ने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बर्नार्ड ने क्या बोला. सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच यू हैव टू डेवलप इन सो फार एज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर राइटिंग इज कंसर्न. आई होप यू आर गेटिंग दिस इज इट फॉर द डे. यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द PDF ऑफ पबेटपीडिया. ये वाली नहीं मिलेगी क्योंकि ये जनवरी 2021 की है, आपको मिलेगी सितंबर 2020 की. अगर आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना हो, 1500 इज़ द कॉस्ट. अफोर्डेबल हो सकता है किसी को ना लग रही हो, जो बिल्कुल प्रिपरेशन जिन्होंने शुरू करी है उनको नहीं लग रही हो मे बी. द रीज़न बीइंग कि अगर आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना पबेट की किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में, देन यू हैव टू पे दिस 1500 to 2000 फॉर वन टेस्ट इटसेल्फ. समझ रहे हो. और यहाँ 1500 में यू विल गेट द मैगजीन ऑफ द एंटायर 12 weeks in which you will get the linking etc. And let me show some credibility things. So here if you just read, this is the topic, the syllabus, you can see means the index in which you will get the headings, and these headings are similar to your syllabus itself. ठीक है. And if you just scroll down further, you will get words of appreciation. This words of appreciation, here you can see the, just zoom and just pause the video and just you can read out this thing. Vijayavardhan sir, he is in Indian Police Service. So this year he is going to
appear in the interview as well in 2020 itself. So he is there. And apart from that, Prasasti ma'am, as you can see, 413 rank already. She is an IRTS. She is an IRTS officer as of now, and she is also going to appear in UPSC 2020. And if you read the words of appreciation, I am not reading it because it is a kind of conflict of interest for me, but if you just pause the video, if you just read it, you will find that kind of thing that I am telling, that time wastage जो है वो आपका बच जाएगा, क्योंकि चीज़ें लिंक भी हो जाएंगी. क्या करंट अफेयर है इग्नोर कर देते हो, वो सब पढ़ लोगे. ठीक है, दिस इज इट. इफ़ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन, you can follow the description box. You will get entire idea of how to get subscription. This is it. Thank you so much and have a nice day.